Yes. So everyone practiced yesterday's heart magic, and how was it while doing the dim list and reading? हाँ? इसने नहीं किया? किया था, but I didn't feel any change right now. नहीं, एक दिन में change क्या आएगा? It was like all about feelings generate होना. ऐसे पढ़ रहे हो और with all your heart, keeping your hand on your heart and then saying. I have a sharing. I did that again. वो magic bill का thank you paid. So I got in return some cash also. You got some cash. Oh wow. Oh wow. अच्छे bill thank you paid लिखा था. हाँ. Very good, Vinu. Very good. Thank you. That's nice. कैश में तो आकांक्षा को हमेशा मिलता है ना. मनी का ग्रेटिट्यूड इसका बहुत ज्यादा. Even I have been sharing. तो बाजार से कोई बिल भी आती है तो सबसे पहले लेके थैंक यू पेड. Hi Kalanti. Yeah, missed you all so much 2 days. Who said I have a sharing? Even we missed. Preeti. Hi Preeti. Preeti has a said, sharing. Yeah, Yes. come. yeah. I turned in the इससे कुछ sound आ रहा है. for my husband. I placed it. Please you hold on, find- Preeti. There is some I sound. think- किसी के मोबाइल Deepa, से आ there रहा is a disturbance from your side. Deepa Chhabria. है. हाँ. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. हाँ जी. Okay. So I had written in my to-do list, magical to-do list, about my husband's ID, his entry ID in the building. So we were not finding it. So since more than a week, I think so, and we were trying to search. So I thought I'll just write it in the list. Right. And yes, he came and he said that I got it in an envelope from the police, that they found it somewhere on the, like he had delivered it at his address. Oh, Wow. So yes, that's good. so I was That's really so good. happy. I told him, Wow. so magic works. Absolutely. Miraculous. I know. Wow. Wonderful. I know. You were घर actually में looking खोज for के it for मिलना so is long. different, but बाहर से मिलना, that is really great. Yes, yes. Yeah, it's He had unbelievable. ordered the other one, but still he found that that's the big thing. Absolutely, absolutely. Kalanti, what about your daughter's card and all? You once you shared. नहीं, No? अभी तक वो issue अभी sort out हुआ नहीं है. They are still following up. You'll find it, Kalanti. Yes, Sure. write it and keep manifesting it. Yeah. Thank you. Keep Thank you. writing. Thank you. Thank you. Kalanti, what? क्या हुआ? वो निशा का कार्ड में किसी ने स्वाइप कर लिया. फ्रॉम यूएस से स्वाइप किया, फिर साउथ अमेरिका से 2 स्वाइप हुआ, एंड हमारे मनी में 40,000 रुपीस का उसका स्वाइप हो गया कार्ड. Oh, oh my God. A complaint. Let's see. Let's hope they get back. Yes. हो अरे they have to pay this month. जुलाई में they'll have to pay the money जो स्वाइप हुआ है कार्ड में. Okay. कलांटी वो पेमेंट नहीं करना पड़ता, तो it takes 45 days for bank to scrutinize, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है कि अच्छा. अगर बैंक फ्रॉड ये लेती है ना, तो बैंक doesn't ask you to make the payments. ओके. क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, तो हम लोग जब भी फ्रॉड के लिए जब केस फाइल करते हैं तो बैंक doesn't ask you to make the payment. पर ये तो क्रेडिट कार्ड है ना. हाँ, तो क्रेडिट कार्ड का भी, मैं क्रेडिट कार्ड की ही बात कर रहा हूँ. मैं अपने भाभी के घर में बैठा हुआ था, क्रेडिट कार्ड मेरे पर्स में थी, मेरा पूरा रुपया गायब हो गया देखते देखते में. अच्छा अच्छा. तो ये क्या होता है कि जब आप डिस्प्यूट करते हो ना, इस ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट अगर आपकी बेटी कर दी है, तो यू डू नॉट हैव टू मेक अ सिंगल पेमेंट टू द क्रेडिट कार्ड. क्योंकि आप पेमेंट करने के बाद क्या होता है, वो फिर पेमेंट क्या होता है, वो डिस्प्यूट नहीं होती है, फिर यू हैव एक्सेप्टेड द ट्रांजैक्शन. फिर अच्छा अच्छा. तो इसका नियम होता है कि वो डिस्प्यूट करना पड़ता है कलांटी. ओके, आई विल टेल देम डोंट पे. हाँ हाँ, बोल दो आप. थैंक यू नहीं, अंकित. 110% आपको रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा. देखिएगा, द मनी विल कम बैक टू यू, द बैंक विल पे इट. वाओ. ओके, थैंक यू अंकित. थैंक यू सो So मच. nice. No यहाँ पे problem, no बोलने से problem. कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं नहीं? आई नो.
नहीं, जिस दिन कला आंटी ने बताया था तो मैंने यूनिवर्स को यही बोला यार कि मेरे साथ भी हुआ यूनिवर्स कम से भाई कम यार ये उनकी नाड़ बेटी में का भी लगा यही ना कर तो देना नाड़ कि में उनको देना नहीं पड़े। So sweet. Thank you नहीं, so नहीं। much. Absolutely. See, even I have no idea about this. You know, जिनको इनको आइडिया है तो ये बता भी सकते हैं how you can, you know. हाँ। Absolutely. ये बैंक के Wonderful. इंश्योरेंस के अंदर जाता है। All right. हाँ, उसको बोलने का कि मैंने ये ट्रांजेक्शन नहीं किया है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। एंड देन उनको आपको पता नहीं इंडिया में क्या प्रोसीजर है। फिर वो लोग बैंक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। वो बैंक का खुद का जो इंश्योरेंस होता है उसमें से वो पे होते हैं, हमसे नहीं लेते वो। इंडिया में तो क्या करते हैं ना, वो डिस्प्यूट फॉर्म दे देते हैं, वो डिस्प्यूट फॉर्म फिलअप करके आपको ईमेल कर हाँ। देना पड़ता है। हाँ। हमारा यहाँ घर पे बैठे बैठे, पूजा में बैठे थे हम घर पे बैठे बैठे, क्रेडिट कार्ड का एक जगह से $500 का स्वाइप हुआ, वो गेम्स का। कोई किसी ने ऑनलाइन गेम खरीदा था, फिर 10 मिनट के अंदर किसी शॉप से ऑनलाइन लैपटॉप खरीदा किसी ने $1500 का। तो हमारा तो ऐसे करके आधे घंटे में $3-4 हजार का चूना लग गया था। मगर फिर बैंक से ही फोन आया कि आपने ये डिफरेंट प्लेसेस से क्यों बाय किया है 10 मिनट के अंदर। तो हमने बोला कि हमने नहीं किया है। तो फिर बैंक ने बोला कि ठीक है, आप उनका जो भी प्रोसीजर था वो किया, तो बैंक टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। और आपका कार्ड जो है ना बेटी का, वो जल्दी से चेंज कर दो, आप रिप्लेस कर दो। उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने तो उसी समय ब्लॉक कर दिया। इवन ब्लॉक करके 10 मिनट बाद एक और स्वाइप हुआ था। हाँ, तभी वो पूरा, हाँ, वो होता है, वो इट्स काइंड ऑफ अ चेन दे यूज सबका वो हैक करने के लिए। लेकिन कला जी उनकी बेटी को बोलेगा नया कार्ड आफ्टर डिस्प्यूट कंप्लीट होने के बाद मंगाए, नॉट बिफोर द डिस्प्यूट इज नॉट सेटल्ड, कार्ड मत मंगवाइएगा। अच्छा, ये एक और चीज उनको एडवाइस कर दीजिएगा। ओके। क्या है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है ना, तो अभी क्या होगा, उनका नया कार्ड मतलब वापस से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या, जब तक डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक आप कार्ड नहीं मंगाइएगा। सबका policies must be different, no? India and abroad. Take call accordingly. Thank you so much, Preeti and Ankit ji, for sharing. Yes. Thank you. Sharing and for the advice also. Yeah. Thank you. Okay, Thank you. We have also learned something. I know. Yes. Yeah, wonderful. Any other sharing, or did the heart magic practice? How was the feeling? Heart magic we can do every day with all our heart. Yesterday I went in the evening for magic footsteps, and it was a totally different feeling. You know, जब nature के साथ आप करते हो ना magic footsteps, घर में करो and nature के साथ करो, it's a totally different divine feeling. So you remember so many things. Air, वो 5 elements जो universe के हैं, उन सब का शुक्राना हो जाता है. And you know, slowly language, आपको जिसमें ज्यादा feeling आए, always keep insisting. यहाँ थैंक यू बोल रहे हैं, मैं थैंक यू बोल रही हूँ, डू नॉट स्टिक टू थैंक यू। अगर आपका फीलिंग्स होता है धन्यवाद में, अगर आपका लाइक 2-3 राउंड मैंने थैंक यू किया, देन यू नो शुक्र है, यू कैन गो दैट वे आल्सो। नो, जिसमें आपका फीलिंग जनरेट होए, ज्यादा भावनाएं जो बोलते हैं ना वो जनरेट हुए, वो उसी लैंग्वेज में करिए। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, योर ओन लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज विच यू यूज एवरी डे। धन्यवाद है, शुक्र है, मेहरबानी है, व्हाटएवर यू से, जिस पे फीलिंग्स हो वही वर्ड यूज करिए, तो वो अपने आप फीलिंग्स आएंगे। जैसे अर्चना जी ने बोल रहा था, कौन बोल रहा था, अर्चना जी बोल रही थी ना, कुछ जब खास फीलिंग्स नहीं आए, मे बी नॉट इन थैंक यू, मे बी स्टार्ट यूजिंग द वर्ड विच यू यूज एवरी डे इंस्टेड ऑफ थैंक यू, मे बी शुक्र है। भगवान के सामने जब प्रे करते हैं अपने लैंग्वेज में जो हम लोग बोलते हैं उसकी ज्यादा इफेक्ट होती है ना, फीलिंग्स ज्यादा आती है, राइट? सो दैट्स अ पावर। फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना भी मुंह से बोलो, लेकिन अगर फीलिंग्स नहीं है तो इट विल नॉट वर्क, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, दिस वर्ल्ड। मैजिक की दुनिया में सिर्फ फीलिंग्स काम करते हैं, राइट? ऊपर से मैं बोल रही हूँ मैं सबका अच्छा चाह रही हूँ, मन में किसी के लिए किंतु परंतु है, तो जो किंतु परंतु है वही होगा अंदर में जो है वही होगा। बाहर से आप कितना भी अच्छा बन लीजिए,
right? So it is all what is there in our heart actually. इसीलिए बोलते हैं अच्छा ही सोचो, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही निकलेगा मुझसे. So that is very important. Yes. और किसी की कोई बातें या शेयरिंग ना? So it's already 4:15. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है आज का, मैग्निफिसेंट आउटकम. आउटकम मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब हम लोग जो परिणाम चाहते हैं, कॉन्सिक्वेंस चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, उसको कैसे बेहतरीन बनाए, है ना? कोई भी काम सामने आपका होना है, हम लोग बोलते हैं भगवान मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाए. तो हम लोग हर पल, हर क्षण, यू नो, एवरी मोमेंट, एवरी वर्क, हम लोग उसको कैसे बेहतरीन और बहुत अच्छा अपने लिए बना सकते हैं. तो उसी को बोलते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम. नाउ दिस प्रैक्टिस इज सो पावरफुल एंड सो इफेक्टिव. डे टू डे में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. मैं तो बहुत यूज करती हूँ. एवरी टाइम, एनी टाइम यू कैन यूज. कुछ प्रैक्टिसेस विल बी वेरी सिमिलर, लेकिन जैसे ये मैजिकल टू डू लिस्ट से थोड़ा सा मिलता जुलता है. यू से व्हाट इज द डिफरेंस. इट इज एन एडवांस लेवल of the same practice, but this is very powerful. Every day में हम लोग हर पल, हर क्षण, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, हर चीज में इसको लगा सकते हैं. एंड इट ऑलवेज वर्क. एंड इट विल ओनली वर्क अगर हम लोग ने कमाई की है ग्रेटिट्यूड की. ग्रेटिट्यूड की कमाई नहीं है तो काम भी नहीं करेगा, तब तो कुछ भी काम नहीं करेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रोंडा बन लगेगा ना, कितना चैप्टर्स आपको लगेगा रेपिटेटिव है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बट आप सोचिए उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया है, क्योंकि वो कोई भी एरिया छोड़ना नहीं चाहती है. क्योंकि वो बोलते हैं ना, जैसे घड़े में अगर एक भी छेद होगा तो सारा पानी निकल जाएगा. तो दैट इज व्हाई यू नो वो हर एक एरिया को जो हम लोग अपने लाइफ में भी कम अक्रॉस, वो सबको कवर कर ले रही है. कि अगर इसमें आपका कहीं नेगेटिव थॉट्स आ गया तो यू नो, तो इसमें ग्रेटिट्यूड लगाइए एंड मेक इट पॉजिटिव. सो शी इज कवरिंग ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ. So no chapter is less important. You know, all chapters are important in our life. तो इसके कोई भी चैप्टर को कम मत समझे. एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है. आप सोचेंगे वो मैनेजर अपॉइंट करने में क्या है, छोटे मोटे चीज को करते रहो. बट वी आर इंक्रीजिंग आवर लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड. हम लोग का जो अर्निंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं. एंड हम लोग को वो माइंड ऑक्यूपाई भी कर रहे हैं. तो शी नोज कि कहाँ हम लोग बिलो द लाइन में चले जाएंगे. इफ वी आर आइडल वी विल स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव. No, so every area she is covering. That's why every chapter is that important. इसका importance यही है. कितने जन सोचेंगे last chapter was, you know, what is there in heart magic, what is there in magic footsteps. But every part is important. उनको जब लगा होगा कि वो चल के कहीं जा रही है तो thoughts आ रहे हैं वैसे. So she covered that also. Right? फिर वो heart का feelings कैसे generate करना है, because उनको लगा कि feelings बहुत important है. So she made one chapter on heart magic. So that's how thoughtful she has been, you know, कि सबका सब जगह से कवर हो. उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया है. And then she must have written 30 days, 28 days practice. So thanks to Rhonda Byrne once again. And thanks to the magic book. And let's just start reading. So today's chapter is very powerful. Magnificent outcome. Right. So who would like to read today? I'll read. I would like to read. Okay, okay. कौन बोल रहा है? मुझे दो तीन आवाज. कलांटी का सुना और हम बोले, but let her read. She wants to. Yeah, I would like to read. Okay. Fine. कौन रीड कर रहे हैं? Please take your name because I can't see on screen right now. Deepa. दीपा जी. ओके. बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर ले. कलांटी आप कल रीड कर लीजिए. So 21 magnificent outcome. आज हम लोग का 3 weeks will be over. So 1 more week to go. So let's buck up and increase our gratitude account. Yes. So here we can see in the picture a door kept a little ajar, मतलब थोड़ा सा खुला हुआ है. And वहाँ पे उस तरफ पूरी रोशनी से भरा हुआ है. So how come that side is, you know, totally. तो मतलब हम लोग जो चाहते हैं, जिस चीज का हम लोग परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा हो, मैग्निफिसेंट हो, बेहतरीन हो, वो उस पार है. और उसको हम लोग अगर पहले ही ग्रेटिट्यूड लगा दें तो उसको हम लोग कैसे बेहतरीन बना सकते हैं अपनी लाइफ. वी एक्सपेक्ट आउटकम इन एवरीथिंग, इजंट इट? कुछ भी काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं तो लगता है अच्छा डिश बने. कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वी वांट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट. इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वी वांट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट. तो आउटकम इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. हर चीज का हम लोग को आउटकम अच्छा चाहिए. फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर भी जा रहे हैं तो भी हम लोग को उसका आउटकम अच्छा चाहिए, दैट वी हैव एंजॉयड अ लॉट, इजंट इट? कोई कॉन्वर्सेशन हो, उसका भी आउटकम अच्छा चाहिए. So we expect outcome in everything. And how can we make it? जरूरी नहीं है सबका आउटकम अच्छा हो, isn't it? So it depends on what gratitude we are giving, what thoughts we are giving.
तो उसको हम लोग कैसे मैग्निफिसेंट और बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, वी विल रीड टुडे। यस दीपा जी। Okay, firstly, thank you, Kalaji, for allowing me to read. पायल दी, एक खाली एक क्वेरी है ये शुरू होने के पहले, शुड आई? यस यस। ये डे 7 में ये देखिए, अगर आपको इमेज दिख रहा है मेरा, तो आपको दिख रहा है मेरा इमेज? ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि डे 7 में जो है उसमें भी डोर खुला है एंड मैजिक डस्ट है उस तरफ डोर के, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है देखने में? मैजिक डस्ट में तो वो प्लेटफॉर्म वगैरह वाला है क्या? ये तो नहीं, मैजिकल ये वे वाला आउट डे ऑफ 7, नेगेटिविटी। हाँ, दैट इज डे 7, मैजिकल। हाँ। हाँ, इसमें और उसमें ये डिफरेंस है, इसमें हम लोग सामने मैजिक, हम लोग का आउटकम है, गेट खोलते ही मतलब हम लोग को उस तरफ की दुनिया में बहुत ही अनचाहा दिख रहा है। इट इज वेरी सिमिलर, बट यहाँ पे क्या है, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। इसमें देखिए दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है कि हमें खोलने की दरकार है, और इस तरफ इस टोटल डार्कनेस, उसमें टोटल डार्कनेस नहीं है, हम लोग इस पार हैं, लेकिन हम लोग अगर मैग्निफिसेंट आउटकम करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। दरवाजा खोलेंगे तो कोई हम लोग ये सोचते हैं पता नहीं कौन आया होगा, रात का 11 बजे बेल बजा है, लेकिन मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे तो अरे कोई हम लोग को सरप्राइज फ्रेंड भी हो सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट मैग्निफिसेंट आउटकम इज। और ये क्या है, हम लोग पूरे अंधकार में है, नेगेटिविटी में है, हमें बस उस दरवाजा खोलने की देर है अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। Yes, Deepa ji. Okay. Day 21, magnificent outcomes. You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. Yeah, so here the writer is saying, हम लोग अपने खाने के पहले तो हम लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, इसीलिए ग्रेस बिफोर मील्स वी हैव स्टार्टेड, राइट? और पहले भी आप देखोगे हम लोग के सब बड़े लोग पहले देते ही थे, हम लोग ने छोड़ दिया है, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड आफ्टर आई थिंक मैजिक इंग्रेडिएंट चैप्टर। यस, बट आई से ग्रेस, ही सेइंग बट आई से ग्रेस बिफोर एवरीथिंग। बिफोर कोई कॉन्सर्ट में वो जा रहे हैं, कोई ओपेरा देखने जा रहे हैं, या हम लोग यहाँ पे जैसे अगर कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो उसका भी आउटकम बहुत अच्छा। कभी कभी होता है ना कि किसी हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं या बच्चों के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी पे बहस हो गई, तो वो आउटकम इतना अच्छा नहीं हुआ। मूवी देखने गए थे, सोचे थे अच्छे से देखेंगे, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हुआ, मूवी अच्छा नहीं निकला, व्हाटएवर इट इज। तो ग्रेस बिफोर प्ले एंड पैंटोमाइम, बट ही इज सेइंग वो कुछ भी काम करने से पहले ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड लगा देते हैं। वो कोई बुक पढ़ने से पहले भी जब बुक खोलते हैं तो मतलब वो जजमेंट के साथ नहीं जाते कि पता नहीं कैसा होगा, होप अच्छा हो, ये नहीं बोलते हैं। उसके पहले ही ग्रेटिट्यूड दे देते हैं कि मतलब बहुत अच्छी बुक हो, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले, राइट? एंड ग्रेस बिफोर स्केचिंग, पेंटिंग, कुछ भी काम करने जाते हैं तो उसके हम लोग स्केचिंग भी करते हैं ना कि मैं जो स्केच करूँ उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। वी वांट आउटकम इन एवरीथिंग, हम लोग को पता ही नहीं है, नोइंगली अननोइंगली वी वांट आउटकम इन एवरीथिंग, राइट? किसके यहाँ से आ रही? स्विमिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, प्लेइंग, कोई भी काम करने से पहले, और वो राइटर हैं तो वो जब अपने लिए भी लिखते थे तो वो बहुत पहले के हैं, 1874 1936। सो व्हाट बिफोर राइटिंग, उन लोग उस समय वो पेन यूज करते थे जो इंक में हम लोग डिप करते थे। तो बिफोर डिपिंग द पेन इन द इंक देन ऑल्सो, मतलब बिफोर कहाँ से थोड़ा साउंड आ रहा है, लिखने से पहले भी। आई एम म्यूटिंग, पायल बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है उसमें पीछे थोड़ा। हाँ, आई एम म्यूटिंग ऑल। दीपा जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। I'll start. प्लीज होल्ड। तो मतलब अपना इंक को उसमें डुबाने से पहले, मतलब लिखना स्टार्ट करने से पहले, बीइंग अ राइटर, देन आल्सो ही यूज्ड टू पे द ग्रेटिट्यूड मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए कि मैं जो भी लिखूं बहुत ही बेहतरीन लिखूं। यस दीपा जी। Okay. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation, but life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck.
The laws of universe operates mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. यस सी तो अब हम लोग जिसका अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, चेस्टर सर ने भी बोला, वो कुछ भी गारंटी द आउटकम ही वांटेड. वी ऑलवेज नो हम लोग को क्या आउटकम चाहिए. वी डोंट वांट अ बैड आउटकम ऑफ एनीथिंग, मतलब बैड रिजल्ट किसी का भी हम लोग चाहते नहीं. तो उनको जो चाहिए वो उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड देते थे. एंड हम लोग कितनी बार बोलते हैं भगवान मेरा ये अच्छा हो जाए, आई होप मेरे एग्जाम अच्छे होए, आई होप मेरा ये पार्टी एकदम सक्सेसफुल हो जाए, है ना. हम लोग बोलते हैं ना आई होप आई होप आई होप. तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, होप फॉर अ गुड आउटकम टू अ सिचुएशन हम लोग बहुत करते हैं, बट नथिंग हैपेंस बाय चांस. यहाँ पे जो भी हो रहा है वो हमारी सोच और हमारे विचारों के कारण हो रहा है. जैसे हमारे फीलिंग्स है, हमारे थॉट्स है, वैसे हो रहे हैं. इट डजंट हैपन बाय स्ट्रोक ऑफ चांस. अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रेटिट्यूड से, और बुरा हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं हमारे ही फीलिंग्स एंड थॉट्स वैसे थे. जैसे कि अगर रॉकेट जैसे कितने बजे वहां लैंड करेगा, इट इज ऑल वेरी मैथमेटिकल, इजंट इट. उनका पूरा टाइम फिक्स रहता है. वो इतने मिनट, इतने सेकंड में वहां पे वो ऐसे राउंड करेगा, रिवॉल्व करेगा, एंड देन मे बी उतने बजे लैंड करेगा. इट इज ऑल फिक्स. तो यहाँ पे भी द लॉ ऑफ द यूनिवर्स ऑपरेट मैथमेटिकली टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री. मतलब जैसे वो है, ये भी इस लॉ में भी हम लोग का एकदम फाइन होता है. जैसे आपके थॉट्स हैं वैसा ही आपका आउटकम होगा. दैट इज समथिंग वी कैन रियली काउंट ऑन. यस. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight, because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground, so you don't float off into the space. You know there's no chance at play, and gravity's law will never fail. Yes. So nice. So पायलट जब अपना प्लेन उड़ाता है तो वो ये थोड़ी सोचता है कि आज मेरी फिजिक्स काम करेगी कि नहीं करेगी. He knows, he has full trust, वो काउंट करेगी. आज हम लोग घर से बाहर ये सोच के थोड़ी निकलते हैं आई होप आज मेरा ग्रेविटी काम करे और मैं ग्राउंड में हूँ कि मैं फ्लोट ही करने लग जाऊँ. नो, बिकॉज वी नो, वी हैव नेवर क्वेश्चन, वी हैव टेकन ऑल दिस फॉर ग्रांटेड एंड वी हैव एक्सेप्टेड दिस बिकॉज वी नो दीज आर द लॉज. तो यूनिवर्स के भी जो लॉज होते हैं ना, हम लोग को भी उसमें भी बिलीव करना भी. जस्ट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ अस तो हम लोग का बिलीव नहीं आता है. बट राइट, तो ग्रेविटी भी तो ऐसे दिखता थोड़े है, बट वी हैव रेड इट एंड वी नो इट. इसमें भी वो लॉ है दैट नेवर फेल्स, लाइक द ग्रेविटी का लॉ इट नेवर फेल्स. सो यहाँ भी जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये भी कभी फेल होता ही नहीं है. yes. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. Yeah, so we know this law of attraction, and यहाँ पे क्या important है, हमारे thoughts and feelings. Now these are very, very important. You have to use the law of attraction. That means you use your thoughts and feelings to attract magnificent outcome to you. अगर हम लोग के thought में कुछ गड़बड़ है तो हम लोग का outcome भी वैसा ही होगा. अगर हम लोग confused होके निकलेंगे तो outcome भी confused ही होगा. Right? We will not get the 100% result. तो इसमें यहाँ पे हम लोग को विजुअलाइज और इमेजिन करना है. तो जैसे अगर हम लोग का विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन एक रॉकेट है, तो उसको हम लोग, रॉकेट अगर ऐसे खड़ा है तो क्या वो उड़ने लगेगा? व्हाट डज इट नीड? फ्यूल चाहिए ना, उसमें फ्यूल चाहिए. तो वो फ्यूल क्या है? ग्रेटिट्यूड. यहाँ पे हम लोग का फ्यूल क्या है? ग्रेटिट्यूड. और हम लोग का विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन क्या है? रॉकेट. तो हम लोग ग्रेटिट्यूड देंगे जो हम लोग को चाहिए, तभी वो हम लोग का पावर उसको मिलेगा और तभी वो रॉकेट की तरह काम करेगा. Then only we will get the magnificent outcome. It is as simple as that. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical
or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any other tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about your behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yes, so देखिए यहाँ पे कितने एग्जांपल्स दिए हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं। आप अगर एक्सरसाइज के लिए जिम में भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं कि भाई आज का आपका वो जो प्रैक्टिस है बहुत ही इफेक्टिव हो, बहुत ही अच्छा हो, बहुत कुछ नया सीखने को मिले। यू नो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो रिसेंटली आई वेंट टू डेंटिस्ट एंड मैंने मैग्निफिसेंट 10 o'clock आई गेव हिम अ कॉल, यू नो, और मुझे लगा कि एक हफ्ते के बाद का, बिकॉज आजकल बहुत अपॉइंटमेंट के साथ जाना पड़ता है, तो मुझे लगा आज कॉल की हूँ तो शायद आज का अपॉइंटमेंट मिलेगा ही नहीं, पर मैंने कॉल करने से पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया था। आई यूज दिस एवरी नाउ एंड देन, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था। एंड आई डोंट नो, फर्स्ट ही सेड मे बी आफ्टर 3-4 days आप आइएगा, बिकॉज यू नो आज का आज तो हाउ इज इट पॉसिबल, वी आर ऑल बुक। एंड देन सडनली द डॉक्टर हिमसेल्फ इज सेइंग, कैन यू कम एट 12? आई सेड यस। देन कम एट 12 टुडे? ही सेड यस। मैंने 10:30 कॉल किया था एंड ही कॉल्ड मी दैट डे इटसेल्फ। नॉट रियली वर्क्स। एंड आई कैन आल्सो टेल यू, लाइक बिफोर लॉकडाउन जब थोड़ा पार्शियल खुल गया था, आई यूज्ड टू टेक माय डॉटर टू अ डेंटिस्ट आल्सो फॉर ब्रेसेस एंड ऑल। तो वहां पे पार्किंग मिलना वाज यू नो बिग वर्क, यू नो, मुझे बहुत ही ढूंढना पड़ता था। सो आई नाउ, तो आफ्टर कमिंग इनटू मैजिक, मैं वो पार्किंग के लिए आई ऑलवेज यूज्ड टू अप्लाई दिस मैग्निफिसेंट आउटकम। घर से निकलते पूरे गाड़ी में मैं वही करती थी कि बस उनके चेंबर के सामने मुझे पार्किंग मिल गया है। एंड बिलीव मी, जब जब किया है, एक बार तो ऐसा हुआ कि देयर इज नो स्पेस ओनली, बट बाय द टाइम आई जस्ट यू नो साइड में किया कि आई वांटेड माय डॉटर टू गेट डाउन सो दैट आई कैन लुक फॉर द कार पार्किंग स्पेस, एंड 2 कार्स छोड़ के वो गाड़ी वहां से निकल गई एक पार्किंग स्पेस से। हम लोग वाओ वंडरफुल, एंड मैंने इमीडिएटली पार्क कर दिया। सो इट रियली वर्क्स, दिस मैग्निफिसेंट आउटकम। एवरी टाइम यू अप्लाई एंड इट रियली वर्क्स, बट you cannot be negative at that time, right? अगर आप वरी हो, चिंता हो, डॉक्टर पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा, दांत निकालेगा, ये अगर that means you are worried and you are fearful, right? You are scared of it. If you are more into worry, तब वो चिंता में हो, घबराहट में हो, तब वो काम नहीं करेगा मैग्निफिसेंट। तब क्या काम करेगा? बिलो द लाइन वाला ही काम करेगा, बिकॉज हम लोग उस समय क्या, हम लोग के फीलिंग से चिंता एंड वरी वाला, फियर वाला, राइट? सो you know, that way also it works. It goes both ways. So we have to be very careful here. Yes, sir. If it helps you to believe in the magical powers of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. राइट, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने मैजिक डस्ट भी उन्होंने इसको कंबाइन कर दिया है। तो यू कैन इमेजिन एंड यू कैन स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट आल्सो, यू नो, एज इफ वो भी एक तरह से यही तो है, उसमें हम लोग ज्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्या ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो यहाँ हमारे चलने से पहले हमारा ग्रेटिट्यूड चल रहा है, इजंट इट? हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उसके पहले ही हम लोग उसमें ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। सो व्हाटएवर यू डू, यू पुट ग्रेटिट्यूड फर्स्ट, करने से पहले देना है, करने के बाद नहीं। यस। Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity
to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yes, so see, जो expected है हम लोग वहां पे भी लगा सकते हैं there, but there are times जब कोई event अपने आप अचानक में हो जाता है, isn't it? जैसे स्कूल से कोई फोन कॉल आ गया, principal is calling, और कोई जो अगर जॉब में है तो उनके बॉस उनको बुला रहे हैं, तो फर्स्ट थॉट हम लोग ह्यूमन नेचर, फर्स्ट थॉट हम लोग का नेगेटिव ही आता है, क्यों बुलाए हैं, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, हैव आई गॉन समवेयर रॉन्ग, मे बी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है या मेरा सैलरी में कट डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, आई होप माई जॉब इज इंटैक्ट, ये सब आते हैं ना हमारे ख्याल में, प्रिंसिपल बुला रही है तो गॉड क्या किया इसने, कभी अच्छा हम लोग सोचते नहीं, हम लोग का सबसे फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज वी बिगिन विद नेगेटिव. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक एंड फील यू विल अट्रैक्ट टू. अगर वही उसमें हम लोग पहले ग्रेटिट्यूड लगा देते हैं, सो अगर कॉल आया, ओ वाओ द प्रिंसिपल इज कॉलिंग, मे बी माय डॉटर हैज डन रियली वेल, एंड जस्ट ऐसे ही हम लोग का अवेयरनेस के लिए बुला रही हैं कि भाई पैंडेमिक टाइम है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड, एंड हाउ टू प्ले अ रोल ऑफ अ मदर, बिकॉज अभी क्या है, बच्चों के मेंटल स्टेटस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है दिस पैंडेमिक टाइम, तो उनके लिए समझाने के लिए भी कॉल आ सकता है, बट हम लोग का क्या है टेंडेंसी, वी ऑलवेज से व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट दैट विल ओनली हैपन. So we have to be very careful. Unexpected भी कुछ आता है तो तुरंत हम लोग को चेंज करना है, हम उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. Generally ऐसा ही होता है ना, कहीं डिले होता है या मिस अ फ्लाइट, oh god this is so bad, why this happened, but always think that something is happening for good only. अगर ये सोच के मैग्निफिसेंट आउटकम लगाए कि कोई बात नहीं, इसके बाद वाली फ्लाइट मिल जाएगी, कुछ अच्छा ही होना होगा, इसीलिए हुआ है. So you receive a magnificent outcome when we put the magic into motion. कैसे? By applying magnificent outcome. हम लोग को अप्लाई कर देना है मैग्निफिसेंट आउटकम एंड लेट और अलाउ द यूनिवर्स टू डू द रेस्ट. वी शुड नॉट गेट इनटू हाउ एंड जस्ट अलाउ. If you are a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you received an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Yeah, so ये भी बहुत बार ऐसा होता है ना, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग जो मैं बोल रही हूँ, इसमें भी, और कोई कॉल आ जाता है, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट कॉल आता है, तो हम लोग के हमेशा कैसे थॉट्स आते हैं, व्हाई एट दिस आवर समवन हैज कॉल्ड, उन नेगेटिव ही कॉल आते हैं उस समय. So before you pick up and do anything, like before you open your email also, लगता है कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेल आ गया तो हम लोग को लगता है अरे क्यों आ गया, but before opening and before picking up a call, then only, उसके पहले हम लोग को मैग्निफिसेंट आउटकम लगा. और हम लोग कितने जन है ना, बच्चे को हम लोग पहले से बोले अरे पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, कितनी बार बोले हमेशा यही बोलते हैं. So what we speak, we have to be very careful, right? So जगह हम लोग बोले, क्या विंटर्स में बोलते हैं ना, स्वेटर पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी, नहीं तो कोल्ड हो जाएगा, don't we say it all the time? So we are saying all this, we are saying this for our children, we are manifesting this only. और हम लोग को सोच के बोलना है. आप बोलोगे कि आप बोलना ही नहीं है ना, बोलो ना, पढ़ने के लिए बोलो, बेटा पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, ये क्यों बोलना है. और कितने बोलते हैं अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पता चला खाली पढ़ लो बोले तो बच्चा कॉमिक्स भी पढ़ सकता है, कोई स्टोरी बुक भी पढ़ सकता है. So right, so we have to be, I think, very careful and use our words, smartly. क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि गलत तो नहीं है ना, यूनिवर्स तो वही सोचा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बच्चा पढ़ रहा है भाई, कुछ भी पढ़ रहा है. So it has to be very सटीक, जिसको बोलते हैं, very crisp, what we think and what we say. Yes. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Right. So look here, Rhonda Byrne is giving us guarantee. बहुत कम जन गारंटी देते हैं,
डॉक्टर्स भी पूरा गारंटी नहीं देते हैं कि यू नो you'll be cured 100% कितनी बार, राइट? दे ऑलवेज से विल ट्राई लेवल बेस्ट, बट यहाँ पे रोंडा पवन गारंटी दे रहे हैं कि जैसे मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, आउटकम एकदम यू नो द वे वी हैव थॉट ऑफ वैसा ही होता है, इसमें भी जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा ही हम लोग का आउटकम होगा. And but our feelings are very important. We feel sincerely grateful for it, then only it will work the way we want it to happen. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember there's no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. Right. So see, यहाँ पे बहुत clear इन लोग ने बोल दिया है, hoping तो doesn't work only, hope something will turn out well अगर हम लोग यहाँ लगा देते हैं. Remember, there is no chance for the law of attraction. Hope में उनको समझ ही नहीं आता है, hope में फिर उनकी मर्जी भी चल सकती है. You will get what you are thinking and feeling. एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर if you are in a worry, कोई स्टूडेंट है तो कि कैसे एग्जाम के पेपर्स आएंगे, will it be difficult, will it be easy, I don't know whether I'll able to answer, ऐसे चिंता में जाएंगे. Now that's negative thought. अगर ये सोच के भी जाएं कि अच्छा है, but if you hear someone else answering so well और लगे वाह इसको तो बहुत अच्छा पढ़ाई की है, you know, if you get jealous, then again below the line feeling, then also the outcome will not be the way you want it to happen. तो इसीलिए यहाँ पे thoughts and your feelings are very very important. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcome. जैसे magnificent outcome है, उसके bad outcome भी होते हैं, right? तो कितनी बार बोलते हैं ना, देखो ऐसा ही सोच रही थी लेकिन वैसा ही हो गया, ऐसा ही सोच रही थी वैसा ही हो गया, यानी कि नेगेटिव सोच रही थी इसीलिए नेगेटिव हो गया, राइट? इफ यू वर स्कैर्ड ऑफ समथिंग ऑफ द रिजल्ट, तो वैसा ही रिजल्ट आएगा. So we have to be very careful. Yeah. When you are grateful for the magnificent outcomes, you're using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Exactly. Exactly. So when you are grateful for magnificent outcome, we are using universal law. And what is a universal law? Law of attraction. And changing hope and chance को तो हम लोग belief में हम लोग बोलते हैं ना, you must be believe, you must have belief, you must have belief. बिलीफ नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा. आई होप ये मेरा वर्क करे, चलो अप्लाई करके देखते हैं, यू नो मैजिक 10 अप्लाई करके देखते हैं, आई होपफुली ये वर्क करेगा, देन इट विल नॉट वर्क 100%. यहाँ पे हर चीज के लिए रोंडा अपन गारंटी दे रही है. व्हेन ग्रेटिट्यूड बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ, यू ऑटोमेटिकली गो इनटू एवरीथिंग यू डू विद ग्रेटिट्यूड. जब हम लोग हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अभी बहुत जन का हम लोग का प्रैक्टिस करते करते आप देखोगे एक वो यू नो हैबिट हो गई है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना, हर चीज के लिए थैंकफुल होना, हर चीज के बारे में थोड़ा सोचना. knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. आपको पता ही नहीं है अगर हम लोग रिलेशनशिप कब अच्छा हो जाता है. हम लोग अभी ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं हर एक चीज के लिए, मनी में सबके लिए दे रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, बट समहाउ योर रिलेशनशिप विल आल्सो स्टार्ट इंप्रूविंग. इन विच एरिया इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग हम लोग को पता ही नहीं है. हाँ, जैसे अगर हम लोग पूरे दिन में आप सोचो 10 ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में लिखते हैं, राइट? फिर 10 अगर हम लोग कोई प्रैक्टिस करते हैं, 10 ग्रेटिट्यूड हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, मैनेजर रखा, कुछ भी रखा, तो यू हैव अर्नड अराउंड से 30 ग्रेटिट्यूड इन अ डे, राइट? 100 फुटस्टेप्स किया तो और भी ज्यादा हो जाता है, बट इवन इफ यू डोंट डू इट. लेकिन अगर एक मेड से कुछ गिर गया और हम लोग उसको कंप्लेन कर दिए, कैसे तुम काम करती हो, तुमको तो काम करने का तरीका ही नहीं है, एक कंप्लेन हुआ उसके लिए. सेकेंड हुआ, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं तुमको पता है कितना महंगा आता है, मनी को लेके कंप्लेन हो गया, राइट? एंड अब फिर और एक के लिए तुम एक के बाद एक तोड़ते जाओ, ऐसे करके हम लोग कितने सेंटेंस, अगर 3 कंप्लेन्स किए, एक कंप्लेन टेक्स अस 10 स्टेप्स बैक, वी नो दैट, isn't it? एक कंप्लेन टेक्स अस 10 स्टेप्स बैक एंड 3 कंप्लेन्स दैट टेक्स अस 30. और ऐसे सोचिए, ये तो एक बार मेड ने कुछ काम किया उसमें 3 कंप्लेन्स हो गया. अगर ऐसे पूरे दिन में 3 बार ऐसे कोई इंस्टेंस हुए तो आप सोचो 60 हो गया,
30 30 90 हो गया था, अगर 2 भी हुआ तो 60, और पूरे दिन में हम लोग कमाए कितना 30, तो हम लोग का अकाउंट कहाँ चल रहा है -30, राइट. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो इसीलिए बिफोर कंप्लेनिंग वी हैव टू कीप चेकिंग व्हाट वी आर स्पीकिंग. और वो क्या होता है ना, जो हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना गुस्सा, मुझे इससे बहुत याद आता है कि बोलते हैं ना एंगर इज योर वर्स्ट एनिमी. गुस्से में हम लोग जो बोल देते हैं, आप उस समय फीलिंग्स देखते हो, पूरा वाइब्रेट करते हो, और एकदम वो जो फीलिंग्स जनरेट होती है ना, दैट इज ट्रू फीलिंग्स, जो प्यार में शायद इतना नहीं जनरेट होता है, जो गुस्से में जनरेट होता है. तो इसी में बोलते हैं ना, गुस्से में आप अपना नुकसान करते हो. कैसे करते हैं? वो तो तुरंत वर्क करता है. आप उस समय गुस्से में अच्छा तो कुछ बोलते ही नहीं हो, है ना. हम लोग के मुंह से गुस्से में अच्छा निकलेगा ही नहीं. वी विल ओनली टॉक नेगेटिव. इट रियली वर्क्स. बोले देखो, गुस्से में कितने जन को बोलते हैं ना, गुस्से में कुछ मत बोला करो, तुम जो बोलते हो जाता है. क्यों होता है? फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है गुस्से में. व्हेन यू सी अ पर्सन हु इज इन एंगर, उनका जो फीलिंग्स है बहुत अंदर मन से आता है, जैसे गुस्सा, तो वो बहुत स्ट्रांग है. वही मन से मैं बोल रही हूँ, ग्रेटिट्यूड निकालो. जितने मन से वो गुस्सा आता है ना, उससे ज्यादा मन से ग्रेटिट्यूड निकालेंगे, फीलिंग्स निकालेंगे, देन दैट विल स्टार्ट वर्किंग इंस्टेड ऑफ दैट एंगर वन. और फिर बोलेंगे देखो, गुस्से में बोला था वो तो मैं, लेकिन वो काम कर गया, लेकिन प्यार से बोला हुआ काम नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? वो फीलिंग्स ही जनरेट नहीं हो रही है, राइट. तो यहाँ पे वही है, इट वर्क्स बोथ वेज. अभी जिनका बहुत अकाउंट में ग्रेटिट्यूड आ गया, आप देखोगे अरे मैं जो बोल रही हूँ वो हो रहा है. जैसे एक दिन आई थिंक आपको शेयरिंग विद सुमन जी होंगी कि मैं जो बोलती हूँ, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर जो आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छा हो रहा है, तो अगर मुंह से गलत भी निकल गया ना, तो वो भी होने लग जाएगा. तो इट वर्क्स. वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट beware, जिसको बोलते हैं, be cautious, क्योंकि it works both ways. Yes. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know the absolute certainty that the outcome will be magnificent. Exactly. तो हम लोग जितना ज्यादा मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस करेंगे, बोलते हैं ना, जैसे प्रैक्टिस करते 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 वी नो व्हेन टू डू इट एंड हाउ टू डू इट. So the more you practice magnificent outcome and make it a daily habit, कोई भी चीज को प्रैक्टिस करने से उसका आउटकम हमेशा रिजल्ट अच्छा होता है. So the more magnificent outcome you will attract into your life. Palji, I have a question. If supposing a person is angry and you know that person is angry, how do you control that anger? How do you stop that anger? Yourself By doing or this? someone else? Somebody else. If I'm not, but somebody is, being Right. really So angry with. basically, हाँ. So here actually we need to work on ourselves only. देखिए, दूसरों का हम लोग इतना कंट्रोल नहीं कर सकते. Okay. But that time what we can do at the most is We can just bless. react नहीं करना है, respond करना है. Generally we react, isn't it? सामने वाला जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, we do react. तो हम लोग को respond करना है, and respond can be you can remain silent. In respond ये can be आप मन ही मन उनको बोल रहे हो, he is calm, he's quiet, he's at peace, all is well, God bless you. That way we can keep saying in our mind. Okay. Thank you. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mails. Yes, so देखिए कितने जगह में है. You can also start by selecting. आज हम लोग को क्या करना है? At the beginning of the day today, 3 separate situations हम लोग को ढूंढने हैं जिसपे हम लोग magnificent outcome चाहते हैं. You can choose 3 things that are important to you. See again, count of 3.
तो करेंटली सच अगर कोई जॉब इंटरव्यू है, अभी मे बी लॉकडाउन है, तो घर में भी अगर जैसे कुछ अच्छा खाना भी बनाना है, बच्चे के पढ़ाई को लेके है या कुछ भी है, तो वी कैन यूज जो एक्टिविटी आपको पता है, कोई हमड्रम एक्टिविटीज मतलब कोई काम जो आप करना नहीं चाहते हो पर आपको करना पड़ेगा. यू डोंट वांट टू डू कुकिंग बट यू हैव टू, isn't it? You don't want to go for grocery buying but you have to. So these are the humdrum activities which you have to do. आज उन सबको हम लोग इमेजिन करेंगे, जैसे विजुअलाइज करेंगे दैट इट हैज गॉन रियली वेल द वे यू वांटेड इट. तो उससे क्या होगा, यानी कि उसमें हम लोग ने फीलिंग्स जनरेट किया, एंड देन वी विल बी रियली ग्रेटफुल. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. ये आएगा वैसे इन दैट लैंग्वेज वी हैव टू राइट. Make a written list of 3 situations you've chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. So this is a language we have to use. Thank you for the magnificent outcome too, and then whatever you want. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for the magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome too. You Right. can't So do please this. hold Deepa ji. So फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो एक्सपेक्टेड थिंग्स है, जो दिन के 3 काम ऐसे हैं जिसमें आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए, उसको लिखना है. Make a written list of the 3 situations you have chosen for the magnificent outcome. सेकेंड स्टेप में 3 unexpected things that arise today. अचानक ही किसी का फोन आ गया, मे बी अपने मदर इन लॉ का या बॉस का या किसी मतलब मे बी अगर फैक्ट्री है तो उसके वर्कर का या कोई टीचर का, उसके लिए हम लोग को लगाना है. यू कुड डू, अब उस समय तो हम लोग पेपर और पेन लेके नहीं लिखेंगे ना, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए हम लोग को लिखना नहीं है. उस समय हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू क्लोज आवर आईज ब्रीफली एंड मेंटली से एंड फील द मैजिक वर्ड्स. उसी चीज को लिखने के बजाय हम लोग मेंटली उसको इमेजिन करके बोलेंगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू. यस, yes Deepa ji. Yeah, one minute. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Right. So as I always say, as Rhonda Byrne always tells us, you can't do this magical practice too much. It is never too much to practice gratitude. The more we do, the more magnificent outcome or result we get in our life. But practicing it today will get into the idea of it, and in the future, अगर हम लोग को कोई भी situation में होपिंग नहीं करना है, होपिंग फॉर अ गुड आउटकम और थिंकिंग यू नीड लक, वो कभी काम नहीं करेगा. यू विल लेट अस इमीडिएटली टर्न टू द मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड मेक इट मैग्निफिसेंट, मेक इट बेहतरीन द रिजल्ट एंड आउटकम एंड विद सर्टेनिटी इन आवर लाइफ. राइट. सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग मुझे जब मैं ये पढ़ी थी चैप्टर, मुझे याद आया हम लोग के बहुत से घरों में हम लोग करते हैं ना, ऑफिस जाने से पहले आई सी लॉट ऑफ मेन, मंदिर के सामने हम लोग हाथ जोड़ के फिर निकलते हैं. बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, उसके पहले क्या बोलते हैं हम लोग, बेटा मंदिर के सामने एक बार भगवान के सामने हाथ. आई थिंक ऑल दोज आर व्हाट मैग्निफिसेंट आउटकम ओनली, है ना. इन्होंने अभी ऐसे बताया है तो कितना कुछ समझ में आया, लेकिन इससे अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे विल अंडरस्टैंड इट बेटर. हम लोग क्यों पहले हाथ जोड़ के जाते हैं कि मेरा आज का काम बहुत अच्छे से हो, यही तो वो करते हैं ना. बहुत जन ऑफिस में एंटर करते सबसे पहले
we pray. तो वो that is magnificent outcome only. एग्जाम के देने से पहले भी तो यही करते हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से जाए. Isn't it? We take their blessings and we put our magnificent outcome to it by taking their blessings. I think that is magnificent outcome only. Right. So we'll read the magic practice number 21. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you, where you want magnificent outcomes. Number 3. List your 3 things and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Number 4. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Deepa ji, for reading so beautifully. You always Thank you, Deepa. Thank you. Thank you so much. Thank you. So first and the 5th practice, like our same, count our blessings and magic rock. और आज हम लोग को 3 things और situation ऐसा ढूंढना है जो मतलब हम लोग को पता है और उसमें हम लोग चाहते हैं बहुत अच्छे से हो. So we will apply magnificent outcome. उसके लिए हम लोग को लिखना है and the language will be thank you for the magnificent outcome too. मतलब जैसे अगर हम सोचो thank you for the magnificent outcome, जैसे फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो fantastic time with my friends, वैसा लिख सकते हैं. या फिर किसी एग्जाम के रिजल्ट के लिए लिख सकते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए लिख सकते हैं, देन कोई मीटिंग है उसके लिए लिख सकते हैं. When you know what you have to do, and as you go through your day, choose 3 unexpected events. जैसे अचानक में कोई फोन कॉल कहीं से आ जाता है, अचानक में कोई व्हाट्सएप मैसेज ऐसा आ जाता है, तब फिर उसके लिए you can be grateful. You don't have to write उस समय. Each time close your eyes and mentally say and feel. मतलब अपने आप को पहले काम कर लीजिए, नहीं तो क्या होता है अनएक्सपेक्टेड रहता है ना, अचानक में आने से वो जनरल टेंडेंसी है, वी गेट वरीड. तो उसके लिए हम लोग को आराम से आंख बंद करना है और उसके बाद सोचना है नो थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. तो इमेजिन करना है रिजल्ट व्हाट यू वांट उसका, एंड देन यू हैव टू से थैंक यू. एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल एंड इट एवरी टाइम इट वर्क्स, बट नॉट व्हेन वी आर वरीड और fearful और scared. उसमें नहीं करना. और jealous, all the negative emotions, then it will not work. So 1000 thoughts come into our mind. लेकिन अगर जब हम लोग के मुंह से जो बाहर हो जाता है ना, उसी को पावर मिल जाता है, राइट. आउट ऑफ ऑल द 1000 थॉट्स हम लोग को उसी लिए बोलते हैं ना, जो बोलो मीठा बोलो, जब बोलो मीठा बोलो. तो ऑल हैज मीनिंग. So here we stop sharing. This has come. वेरी नाइस एंड वेरी पावरफुल, एंड डे टू डे में हम लोग बहुत अप्लाई कर सकते हैं इसको. वॉक के लिए भी जा रहे हैं, देन थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू ब्यूटीफुल मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक विद योर, इवन इफ यू आर गोइंग विद योर हस्बैंड और फ्रेंड और योर चाइल्ड, में भी उसके लिए भी लगा सकते हैं. एक जाते हैं कि ऐसे ही आ जाते हैं और एक हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छे से अच्छा लगता है. दैट कैन बी जैसे दैट डे आई शेयर्ड, आई वेंट टू अ बैंक. मैं मैग्निफिसेंट आउटकम करके गई थी एंड आई थिंक आई शेयर्ड, सिर्फ मेरा पासबुक अपडेट हुआ और किसी का नहीं हुआ, एंड ऑल माय वर्क वाज डन रियली स्मूथली एंड वेरी नाइसली, बहुत जल्दी. सेम विद द डॉक्टर चेंबर, सेम विद कार पार्किंग. मतलब मैग्निफिसेंट आउटकम तो ऐसे एवरी टाइम इट वर्क्स. सो यू कैन कीप अप. हां जी, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू फिर डैश है. तो से मेरा कोई डील होने वाला है या सपोज कोई पेमेंट आने वाला है, तो 2 के बाद लिखना वो. हाँ, आप जो रिजल्ट चाहते हो वो लिखना है, आइडियल स्टेट जो आप चाहते हैं. जैसे मैं बोलती हूँ मेरा कोई पेमेंट आने वाला, तो मैं क्या लिखूंगी, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू गेट द पेमेंट. टू द फुल मतलब आपका जो भी पेमेंट आने वाला है, रिसीव द फुल पेमेंट. जिस पर्सन का है उसकी भी आपको डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा. नहीं डाउट नहीं है, बट
टू के बाद लिखना कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो फ्रेम करना अपने आप आ जाएगा, पर अगर ये टू तक लिखना ही है उसके बाद ही लिखना है तो व्हाट द वर्ड शुड बी देयर, मतलब जैसे आपने बताया था ना नेगेटिव वर्ड्स नहीं लेने हैं। नो नेगेटिव वर्ड। हाँ, तो इसी का एग्जांपल ही मैं आपसे ले रही हूँ। हाँ, तो थैंक यू फॉर द to the amount to the amount magnificent outcome to the amount I'm receiving from so and so person. ओके ओके। But I what think about the instead of unexpected situations? For the unexpected situations, अनएक्सपेक्टेड तो देखिए हो सकता है आए भी, क्योंकि सब घर में हाँ। हो सकता है ना भी आए, अचानक कहीं से ऐसा कॉल आ गया, अचानक कोई ऐसा काम करना पड़ गया, जैसे कभी कभी बोल देते हैं ना, इन लॉज बोल देते हैं, मदर इन लॉ बोलती, हस्बैंड बोलते या बच्चे बोलते कि मम्मा अभी ये करना है, या कोई मदर इन लॉ बोले कि अभी ये बनाओ, तो दोज आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो उसमें हम लोग मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं, जो हम लोग को करना है लेकिन करने का मन नहीं है ना। Okay, कोई call Payal ji, आ गया, instead of two, can we write four? Can we say at times, four? yeah, at times actually four भी हम लोग बहुत बार लिख There's देते so हैं। many times you just say four Exactly. instead of two, right? Four. Yeah. Yes, yes. I do write four at times. That's what I always think about four. Okay. Yeah. Same here. पायल जी, जैसे मेरा कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो वही लिखना है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। नहीं, फॉर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट में आप किस लिए जा रहे हो, आपका उसको आप क्या चाहते हो, डॉक्टर से क्या सुनना चाहते हो? वही कि आई एम लाइक वॉकिंग परफेक्टली एंड माय बीपी एंड ऑल। एग्जैक्टली, तो आपको वही लिखना है। For the best results. ओके। You can be specific, as if your conversation, the doctor is saying that that you are walking on your own and you will be absolutely hale hearty. Pain चला जाएगा, you will be walking a little later, ये सब कुछ नहीं बोलना है। What the ideal state you want to hear from the doctor. You will write that. Yeah. Payal ji, I have a question. Like when we are writing 10 blessings in the morning, na, the same day we do not repeat, but eventually like day after day, तो कभी कुछ repeat हो जाए तो it's okay ना then? It is okay, लेकिन अभी तो आप लोग इसी मंथ स्टार्ट किए हो तो भी रेपिटेशन हो रहा है। How come? I know there is one lady in Suvarna's session. उनका I think she's been writing from past 5 months and she's saying not a single blessing has been repeated. मतलब वो तो मेरे को भी सुन के I was really surprised. Not a single. बोले अपने पेरेंट्स के लिए भी रोज लिखती हूँ, then also she's giving gratitude on different things. Okay. Yeah, so we have to think a little more. Yes. Yeah. नहीं वो तो मैं like I am trying not to repeat, but if it happens. No, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ खराब तो आप कुछ कर नहीं रहे हो तो कि खराब होगा, right? It's always nice only. But try to think differently, क्योंकि हर एक एरिया को कवर अप करना है। what I do is चाइल्डहुड में चले जाइए, स्कूल में some teachers कभी कोई हेल्प की थी, कोई फ्रेंड हेल्प की थी, तो उसको हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं दे हैं। So try to write that. Okay, thank you. ऐसी अच्छा आप लोग बोले मोनिका आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। Yes. पायल, जैसे कल मेरा शॉट है वैक्सीन का, तो फिर मुझे क्या लिखना है? थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर अ वैक्सीन वर्ड लिखना है कि नहीं? स्मूथ एंड हेल्दी वैक्सीनेशन, सक्सेसफुल वैक्सीनेशन। मतलब आपको चाहते हो जल्दी हो जाए, आराम से हो जाए। Smooth and easy vaccination. I don't want to use the word vaccination. I don't know whether it's negative or not. Protection, full protection. I think vaccine is a good word, na, because it is giving us yes, true. protection against a disease. So it should be a good word. It should be a positive word. तो मैम अपने डेली ग्रैटिट्यूड में वैक्सीनेशन वर्ड यूज किया है 2-3 बार। Okay, but don't make it a regular habit. अभी कल का है तो बस you can write it, but don't make it ऐसे कि बार-बार हर चीज के लिए वैक्सीन ही लगता जा रहा है। एक तो क्या हम लोग वर्ड मेडिसिन नहीं यूज कर सकते हैं कोई ब्लेसिंग में? No, I think don't use the word medicine, provided how you are using, Shalini ji. Yeah, thank you for taking this medicine. ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि healing में। Result I have got by using this medicine. Yes. अब आप लिख लो। So, like I gave my gratitude to my Stop medicine. medicine ऐसे मत लिखना। So No, I gave my gratitude. Thank you, my medicine, for healing my stomach ache. Like Yes. healing my stomach. ऐसे मैंने दिया. Is it okay then?
हाँ, then it is fine, क्योंकि inside outside दोनों में हम लोग पढ़े थे ना उस दिन, आइंस्टाइन बोले थे ना inside and outside. तो inside is like taking medicine, it is healing me. Taking water and food, it is healing me. Oxygen and all, it is healing me. Right. Okay. So we have to be very. जब हम वैक्सीनेशन लिए तो हम जब I just gratitude to thank you to doctors जो थे वहाँ, नर्स जो थी और जिसने मुझे वैक्सीनेशन दिया, उसको देने के बाद ऐसे थैंक यू सो मच. बोले आप इतना क्यों थैंक यू सो मच? बोले नहीं, हम बोले नहीं, हमको बहुत दर्द नहीं हुआ, थैंक यू सो मच. I did the same, and actually कोई pain कुछ भी नहीं था. I said, now your hands are very good. So acknowledge and must acknowledge and must pay gratitude to them. मैं फर्स्ट टाइम ली थी, मुझे फीवर हुआ गया. सेकंड टाइम में कुछ भी नहीं पता चला. नहीं दो मेरी फ्रेंड और हम दोनों साथ लिए, तो वो मुझसे पूछी हमको बुखार होगा, हम बोले कुछ नहीं होगा, हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है. बोले तुम तो, हम बोले तुमको भी नहीं होगा, डोंट वरी. Yeah, so I have a sharing. Yes, Shanvi. My daughter is supposed to come back from States for a holiday. All right. And हमने परसों उसकी टिकट कराई थी. Okay. And कल हमको दोपहर में मैसेज आया एयरलाइन से that the flight has been cancelled. So we were quite disappointed because भाई उसको गए को भी 6 महीने हो गए and all of us were eagerly waiting for her. तो अब I don't know क्या बात, उससे बात भी नहीं हो रही थी. शाम को उससे बात किए तो we told her बेटा you have option, या तो तुम बाद में आओ 2 दिन या तुम पहले आओ. So she said no, let me come a week before. And we were so happy. Everybody was so grateful. Oh, it happened just after that magic footsteps things. Oh wow. So I don't know किस लिए हुआ, क्या कारण से हुआ, but actually we were so grateful for it. तो वो आज सुबह blessings में भी लिखे that we are so grateful that she's coming back a week earlier. Yeah. Wow. That's a wonderful change. Priyal, no? Priyal? हाँ, Priyal. Yes. Wow. Priyal. She looks like तो Neha. वो हो सकता है कि वो सुबह लिखा था कि भाई thank you for the wonderful news that is called me coming up my in the way afternoon. She actually called me up in the afternoon and she was really sad. I said, don't worry, there has to be something good in it. हाँ, right. We told you this. We talked this. वो flight वाला जब mention था तो मुझे exactly यही strike किया. I said we applied the magnificent outcome yesterday without even knowing about the chapter. Yeah, actually we did that. Exactly. So, and you wrote that in your blessing also. Yes. Oh, lovely. Yes, I did. Okay, wonderful, wonderful. Thank you so much. Thank you, Shanvi. Great news, great sharing, and eagerly waiting for her. Yeah, wonderful, Shanvi, wonderful. Thank you, Deed. पायल जी. हाँ जी. वो मम्मी पूछ रही है अपने 3 बार थैंक यू क्यों बोलते हैं? हाँ, तो जैसे अभी आप समझाओ बाप, जैसे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का भी है ना, एक क्रिएशन है ना, हिंदी मेरा भी स्ट्रॉन्ग है. क्रिएशन जब होता है जैसे मम्मी पापा बच्चे, तो हर जगह 3 अप्लाई होता है. तो वैसे ही थैंक यू रचना हर चीज. ठीक है, मैं बता देती हूँ इनको. इवन ओम नमो शिवाय में भी 3 आते हैं वर्ड्स. लेकिन उसमें भी पूरा 3 आता है. ओम में भी तो 3 अक्षर है. 3 अक्षर मिलके ओम बनता है. आ ओम. It is not just ओम. It's आ ओम. Yes, ओम में भी. So it is all about creation. सब हम लोग की आंटी जी, सब हम लोग की संस्कृति से जुड़े हुए हैं. अब हम लोग को अब पढ़ने में आ रहा है. क्या चल रहा है? और किसी का कोई शेयरिंग? वंडरफुल शेयरिंग. I have a sharing. Very good. Yes. Actually, when my sister cracked the entrance of MBA and she got the 4th rank. Wow. So on the day of, thank you. So on the day of counseling, might be due to some reasons, she got late. तो मम्मा मैं क्या करूं, मेरी तो 4th रैंक थी, मेरा नंबर निकल गया होगा, हाउ गेट आई माय कॉलेज ऑफ माय चॉइस. तो my mama said, you go, just have faith in the mind and heart and go. और वो गई, उसका नंबर निकल गया था. But
all of a sudden एक बच्चे ने कि I don't want that college and she got that the opportunity. Wow, wonderful. Unbelievable. वो कह रही थी मम्मी फोर्थ रैंक का तो 2 मिनट में काउंसलिंग वो हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. Lovely, congratulations. That's really, yeah, thank you so much. Which college? So it's really Congratulations. sometimes it's really very कि मतलब कोई ऐसा काम होता है ना, मन में डाउट होता है, मैं अपनी मम्मी को फोन करती हूँ, मम्मा ये काम हो जाए, ये भी नहीं बताना पड़ता है काम क्या है, और कहती है हाँ बेटा हो जाएगा. Wow, so she must be using gratitude in every area. Very from very childhood. छोटेपन से, मतलब हम लोग इतने छोटे थे, हमेशा उनके मुंह में भजन यही होते हैं, शुक्रानों के गीत हम गाएं, and we should be thankful. मतलब कभी उनको नेगेटिव मैंने देखा ही नहीं है. Lovely. नहीं, हम लोग सीखते ही नहीं है बड़ों से ना. We must listen to them more. We must spend time with them more to learn all this. That's true. Wonderful sharings today. So अभी मैजिक का बहुत अच्छा यूज हो रहा है. So gratitude account हम लोग का यानी कि बहुत भर रहा है, इसीलिए सब मैजिक दिख रहे हैं. So let us earn more of gratitude. तो जो हम लोग के जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स है ना, उसके लिए हम लोग को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड चाहिए. So we can achieve those also. So let's pay our gratitude first. Thank you. For sharing. I want to share you something, Payal. Yes, Priyanka. मेरा वैक्सीनेशन सैटरडे को हो गया, so my husband told कि अच्छा इस वीक के एंड में तुम्हारा टिकट हम करा देते. हम बोले नहीं 8th या 9th 10th के आसपास कराना. बोले इतना क्यों? मैंने कहा नहीं क्लास भी चल रहा है. 8th को हम लोग का खत्म हो रहा है क्योंकि मैंने कहा मेरा क्लास चल रहा है, उसके बाद 2-3 दिन पैकिंग में लगे, उसके बाद कराना. बोले ऐसे तो इतनी जल्दी तुमको जाने की थी और अब मना कर रही हो. मैंने कहा नहीं आराम से कराना. कोई so sweet of Priyanka. I really like no, I'm really enjoying the class. and 2 दिन मेरा नहीं हो रहा था ना, तो पता मन में अजीब सा वो that you're missing something actually. Right. It keeps us rooted to the ground every time. कल किचन में हम वो मेरा डॉटर का बर्थडे था तो थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रही थी, तो आई वाज जस्ट टेलिंग द मैनेजर, तो शौर्य पीछे से आके खड़े होके बोलता है मम्मी कोई भी नहीं है किचन में, आप किससे बातें कर रही हो? किसको बोले जा रही हो कि ये कर वो कर? मैंने कहा नहीं मैं अपने मन में बोल रही हूँ. So nice, invisible manager को देखो appoint करना is so easy, but we forget to appoint, and he doesn't charge us also anything. But हम लोग फिर भी appoint नहीं करते. We can always appoint and earn gratitude. Even I had a sharing regarding this. कल कुछ मेरा पेपर वर्क था, तो I have started a new business venture अभी. तो मेरा कुछ पेपर वर्क था, तो मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा कस्टमर केयर में किसका नंबर दे, तो कहते हैं किसी का भी दे दो, स्टाफ का दे दो. मैंने स्टाफ तो इतना सही नहीं रहेगा, बोला अपॉइंट वन मैनेजर. मेरे को लगा इनको मेरा मैजिक के बारे में कैसे पता, वो मैनेजर तो इनविजिबल है, वो कस्टमर्स का आंसर थोड़ी देगा. मैं बोली हाँ मैनेजर तो एक रखना पड़ेगा. फिर मैंने उनको मैनेजर वाली पूरी स्टोरी बताई, तो ही वाज लाइक लफिंग. बोला हाँ ये भी ठीक है, और ये एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड को अपना सिग्नल देने की बात है कि हम लोग एक तरह से ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं और सिग्नल दे रहे हैं. तो ये पाया जी. नहीं बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच. आउटकम का बहुत वेरी गुड, थैंक्स यू. मतलब हम मैग्निफिसेंट आउटकम किए, मैजिक डस्ट दिए अपने. केक आई मेड इट यस्टरडे फर्स्ट टाइम विद द डिफरेंट मतलब इंग्रेडिएंट्स ऑफ द आइसिंग एंड ऑल. Came out really good. While her cake was very tasty and very to look at also. It was that so very well. It seemed as if किसी ने उसमें painting कर दिया. इतना बढ़िया. Yeah. So next time when we meet, Priyanka is getting cake for us. Yes. We should get. For sure. नहीं. श्वेता भी खाई है कल. श्वेता को दिव्या के घर में पार्टी था तो she couldn't come. Radhika, Shweta was there. Lovely. Shweta herself bakes really good cake, no? Yeah, very nice. But इस क्लास का बहुत फर्क पड़ता है, मजा आता है. I do in
छोटा छोटा चीजों में इम्पैक्ट करने से ना यू गेट अ गुड रिजल्ट, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक्चुअली। Absolutely, you know, और हम लोग का बड़ा अगर पूरा नहीं हो रहा है, that means you know we are practicing a little. अभी छोटे छोटे के लिए उतना ही हम लोग का gratitude हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं practice a little more, तो हम लोग के bigger dreams and desires भी हो जाएंगे. I remember your son dream of owning a horse. Yeah, it's coming soon. Wow, that was his dream. Yes. It's coming soon. It's working actually उसके ऊपर. तो because of this pandemic थोड़ा सा delay हो गया, तो we are working अभी. Oh, lovely. He must be really happy. Yeah. He is, you know, थोड़ा सा foodie baby है, तो he loves to eat and all. तो अभी because of the riding and everything, she मतलब cut down most of the things. थोड़ा सा conscious हो गया कि नहीं weight reduction करना है. वो सब. वो अपने विजन पे वो हॉर्स का पिक्चर लगा हुआ है अभी भी कि नहीं उसके? वो तो उसके स्क्रीन सेवर में रहता है. या मतलब I'll send you the personal में कैसे वो वाटर के ऊपर पूरा का पूरा राइडिंग किया था. अभी पूरा वाटर पूरा रेन हुआ था ना, अभी 2 दिन तक पूरा लगातार. तब मतलब he is a crazy rider actually. He loves. So he'll be a champion one day and we'll be very proud of him. Yes, crossing my fingers and touch wood. I know, just you know, imagine and visualize him being, you know, representing India. Why not? शौर्य को हम बोलते हैं कि तुम विजुलाइज करो. बोले विजुलाइज करते करते मम्मी कितने साल हो गए. आयशा, आप एक स्टोरी सुनाने वाले थे, आपने कल बोला था. Yeah, I'll say tomorrow at 5:15 हो गया है. Okay. 5:30 I'll go for my, you know, walk नीचे. Thank you so much. Thank you. Before your very eyes is a very small chapter, तो हम लोग उसमें करेंगे. Thank you, Payal. Thank you so much. Thank you for all your sharings, and I wish more and more magic to all your life. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'll see you tomorrow.